Hello everyone, this is your teacher Anuradha Dubey once again before you with explanation of another interesting story from class 12 Vistas. The name of the story is The Tiger King and it has been written by Kalki. This story deals with two very beautiful and important themes. One is death is inevitable, death को टाला नहीं जा सकता है, and the second is the ruthless attitude of the people who are in power towards nature and wildlife. So the story starts with the introduction of a king, the king of Pratibandhapuram, who has many names like Kiledar Jailer, Jilani Jang Bahadur, the Shatabyagra Sahari, ARCT, and many else. But popularly he is known as the Tiger King. The author creates a hype about the introduction of Tiger King, saying that this is a man of indomitable courage. ये एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही अदम्य साहस वाला आदमी था. And then he goes on to tell about an incident that happened when the Tiger King was born, जो अभी तक प्रतिबंधपुरम में फेमस है और जिसके बारे में लोग आज भी बातें करते हैं. Actually, when the prince was 10 days old, an astrologer predicted that one day this child will have to die. In spite of being the warrior of warrior, champion of champions, he will have to die one day. At this, the 10 days old child begins to speak. He gives a loud laughter, loud crack, and says, "Oh wise prophet, it is known to everyone, whosoever has taken birth in this earth, he will have to die one day. So there will be some sense in it if you tell me the manner of my death." The astrologer says that because the prince has been born in the hour of bull and bull and tigers are the enemy, the death to this prince will come by a tiger. तो आपको लग रहा होगा कि टाइगर का नाम सुन के तो बच्चा बहुत डर गया होगा, but it did not actually happen, क्योंकि बच्चा एक लाउड ग्रोल देता है और चैलेंज करता है, बीवेयर टाइगर्स. वो चैलेंज करता है सारे टाइगर्स को कि उन्हें अब उससे सावधान रहना पड़ेगा. इसके बाद डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उसका ब्रिंगिंग अप होती है. बिकॉज इट वॉज द ब्रिटिश टाइम एंड रॉयल्टीज वर they were used to bringing up their children according to the traditions of English culture. तो ये जो प्रिंस थे इसका ही ब्रिंगिंग अप भी जो थी वो पूरे इंग्लिश पैटर्न से हुई. He drank the milk of an English cow. He was brought up by an English nanny. An English teacher came to teach him and tutor him, and he used to watch only English movies. And when he came to the age of 20, he became the king. But the story about the astrologer's prediction was still popular in Pratibandhapuram, and there was a kind of dissatisfaction among the public regarding the status of the king. So the king thought कि जब तक मैं अपने आप को prove नहीं करूंगा, my subject is not going to like me or respect me. So he goes into the forest and kills a tiger and presents that killed tiger to the astrologer and says, लीजिए अब बताइए मैं क्या करूं इसका, आप बताइए आप क्या कहते हैं. The astrologer says that you can kill 100 tigers like this, but you have to be beware of the you can kill 99 tigers like this, but you have to be beware of the 100 tiger, क्योंकि वो 100 tiger is going to be the cause of your death. और इसके बाद राजा प्लेज लेता है कि अब वो राज्य के सारे मैटर्स को अटेंड करेगा जब वो 100 टाइगर्स को मार लेगा. ही passes a declaration in the kingdom that tiger hunting is banned in the state of Pratibandhapuram. Now nobody can even fling a stone on a tiger, otherwise their property can be confiscated by the kingdom, by the king. So it was in another way or in an indirect way, it was a celebration time for the tigers of Pratibandhapuram, because now they knew that they can be killed only by the tiger king and nobody else. It was a challenging journey. This mission of tiger hunting did not prove to be easy. Many times the bullet used to miss and the tiger king had to fought with the beast with bare hands, but every time it was the king who successful.
तो जीत जाया करता था वो। एक बार एक दूसरे तरीके का खतरा उसके राज्य के लिए आया। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू हंट अ टाइगर, but obviously he was refused by the Tiger King. Then the British officer said that I do not need to kill the tiger. The Tiger King can actually do the killing. He only needs a photograph with the dead tiger holding a gun in his hand. He just wants this. But the Tiger King did not permit even this, because he knew that if he relented to this request, then there will be a line of the British officers doing this kind of adventure in Pratibandhupuram, and he could not afford it because he had to continue his own mission of killing 100 tigers. So he had defended a British officer from fulfilling his desire, so his kingdom was in danger. So after having deliberation from with his दीवान, उसने क्या किया, एक ब्रिटिश ज्वेलर था कैलकाटा का, वहां से उसने 50 सैंपल्स ऑफ डायमंड रिंग्स मंगाए और उनको उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दिया, और सोचा था कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ जो है वो 2-3 रिंग्स ले लेगी, बाकी सैंपल्स को वापस भेज देगी. बट द लेडी कैप्ट ऑल ऑफ द रिंग्स एंड सेंट अ थैंक यू टू द महाराजा. And then the third day, they got a bill of rupees 3 lakh from Calcutta. Thus, they lost 3 lakh rupees, but managed to retain his kingdom. तो 3 लाख रुपए तो उसने खो दिए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसने अपने राज्य को बचा लिया. इसके बाद फिर एक और खतरा पैदा हो गया उसके मिशन के लिए. यहाँ ऐसा हुआ कि जो टाइगर पॉपुलेशन थी उसके किंगडम में, इट केम टू एन एंड. टाइगर पॉपुलेशन खत्म होने लगी, टाइगर खत्म हो गए उसके राज्य में, और अभी उसने सिर्फ 70 टाइगर्स को मार पाया था. सो 30 टाइगर्स वर स्टिल लेफ्ट टू बी हंटेड. तो उसने क्या किया, उसने अपने दीवान को ऑर्डर दिया कि लेट्स टेक आउट अ स्टैट्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन अवर नेबरहुड किंगडम्स. देखिए कि हमारे आसपास के किंगडम्स में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ हैं, और इसके बाद एक और टैली करिए कि उन टाइगर्स अबंडेंट राज्यों में से किस राज्य में कोई राजकुमारी है. तो इस तरीके से उसने एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी की जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे. दस ही सेट अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद अनदर किंगडम दैट वाज हैविंग अबंडेंस ऑफ टाइगर्स. तो इस तरीके से वो हर बार अपने इन लॉज के यहाँ जाया करता था और 5-6 टाइगर्स को मारा करता था. एंड दस ही गॉट सक्सेस इन किलिंग 99 टाइगर्स एंड नाउ ओनली 1 टाइगर वॉज लेफ्ट. अब जब एक टाइगर रह गया 99 टाइगर्स के बाद, तो उसकी जो एंजाइटी थी, उसका जो विगर था, उसकी जो एंगर था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. इट केम टू अ फीवर पिच. ही वॉज मैड विद रेज कि कैसे करके बस एक उसका मिशन कंप्लीट होने में सिर्फ एक टाइगर मिसिंग है. अगर वो उस एक टाइगर को मार लेता है, सो ही नीड नॉट टू फियर एनीथिंग और एनीबडी. उसके बाद तो उसे किसी से डरना ही नहीं पड़ेगा, वो फ्री हो जाएगा उस मौत के डर से हमेशा के लिए. लेकिन बस वो एक टाइगर, पर ये एक टाइगर जो था, ऐसा लग रहा था जैसे ये टाइगर राजा के पेशेंस को ट्राई कर रहा हो. ही वॉज नॉट एबल टू गेट दैट 100 टाइगर. Suddenly he got a news from a nearby village that sheep were getting missing from there. So he thought that maybe some tiger is at work. तो जाता है वहां शिकार करने के लिए, खुश होके वहां के जो इन्फॉर्म करने वाले विलेजर्स होते हैं उनके लैंड टैक्स को एकदम फ्री कर देता है. वो उनको फ्री कर देता है. ठीक. और उसके बाद फिर वो वहां जाके जब शिकार करने के लिए कोशिश करता है, अपनी कैंपिंग करता है, ही इज नॉट एबल टू गेट द टाइगर इज स्टिल मिसिंग. तो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद अपने दीवान को बुलाता है और बोलता है कि इन सब के टैक्स को डबल कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी दे आर नॉट एबल टू इन्फॉर्म मी अबाउट अ टाइगर एंड दे आर क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल इन फुलफिलिंग माई मिशन. तो इनके टैक्स को डबल कर दो. तो दीवान उनको रोकता है ये करने के लिए कि पब्लिक में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करना कोई भी ये वाइज स्टेप नहीं है. तो दीवान को वो चैलेंज कर देता है कि इफ यू आर नॉट एबल टू अरेंज द 100 टाइगर फॉर मी, यू आर गोइंग टू बी फायर्ड वेरी सून.
तो थोड़ा डर जाता है, दीवान अपने घर जाता है और तब उसको याद आती है कि कैसे उसने अपने घर के बेसमेंट में मद्रास से लाए हुए, एक जू से लाए हुए एक टाइगर को उसने वहां बांध रखा है। एंड दिस टाइगर इज वेरी ओल्ड एंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम ही इज लिविंग इन द केज। तो वो थोड़ा सा बड़ा ही डोसाइल जैसा सा हो गया है वो टाइगर। तो उसी टाइगर को वो अपनी कार में बिठाते हैं और लेके उस स्पॉट पे पहुंचते हैं वेयर द टाइगर किंग इज हंटिंग। उस वहां पर ले जाके उस टाइगर को वो छोड़ देते हैं। एंड द टाइगर प्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू बिफोर द किंग। और टाइगर किंग जो है वो उसको एम करता है और उसको शूट करता है, बट द बुलेट मिसेज इट्स मार्क। विदाउट इन द इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइगर किंग, he fainted. The tiger fainted because he was very old and he got shocked by the loud noise and sound of the bullet. तो वो वहां बेहोश होके गिर जाता है और टाइगर किंग को लगता है कि वो मर गया। और वो अपने जो एसोसिएट हंटर्स होते हैं उनको कहता है कि एक बड़े से प्रशासन के साथ इस टाइगर को लेके आओ राज्य में। तो राजा चला जाता है वहां से। उसके जो हंटर्स होते हैं, दे टेक अ नियर लुक ऑफ द टाइगर एंड दे फाउंड दैट ही वाज स्टिल अलाइव। ही वाज रोलिंग हिज आईज, सो ही वाज अलाइव, but they could not dare to inform about this to the tiger king because they thought they are going to be punished by saying that the tiger king had missed his mark. So they just killed the tiger by their own shot and they took out the tiger in a grand procession. He was buried under the ground और उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ा सा मेमोरियल उस 100 टाइगर की याद में बना दिया गया। यहां से, क्योंकि अभी तक पहले ही आपको बताया था कि टाइगर किंग ने कसम खाई थी कि वो अपने सारे मैटर्स को 100 टाइगर्स के मारने के बाद ही अटेंड करेगा, तो अब उसने अपने घर की ओर ध्यान देना शुरू किया। और उसका एक 3 साल का बच्चा है जिसका कि आज बर्थडे है एंड ही वांट्स टू गिफ्ट सम स्पेशल प्रेजेंट टू हिज चाइल्ड। He goes to the market of Pratibandhapuram, searches from shop to shop, and then they reach on a toy shop जहां पर वो देखता है और उसे कोई भी suitable toy जो है वो नहीं लगता है। Suddenly he glances at wooden tiger toy in one of the shop और उसको लगता है what else can be a most suitable gift for the son of a tiger king। तो वो शॉपकीपर से उसके पैसे पूछता है, कितने पैसे का है, और वो कहता है 2.25 आने का। सो द अमाउंट इज वेरी स्मॉल। तो वो क्या करता है, उसको लगता है शॉपकीपर को कि इफ आई एम गोइंग टू कोट दिस लिटिल अमाउंट टू द टाइगर किंग आई एम गोइंग टू बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी। तो कहता है 300 रुपए का ही है। टाइगर किंग उसको ले लेता है, कहता है बहुत बढ़िया, क्राफ्टमैनशिप का नमूना है ये, तो ये तुम्हारी तरफ से इस टाइगर किंग के बेटे के लिए बर्थडे गिफ्ट हो गया। और वो ले जाता है उसको और दोनों पिता और बेटा जो है वो उस टाइगर किंग और उसका बेटा जो है उस टाइगर के साथ खेलने लगते हैं। ये जो टाइगर था, जो लकड़ी का टाइगर था, इट वॉज कार्व्ड बाय सम अनस्किल्ड कारपेंटर। किसी नौसिखी कारपेंटर ने बनाया था और उसके नीचे जो सरफेस था दैट वॉज वेरी रफ। It has quills-like structure on the bottom, and when they were playing, one of the sliver got pierced in the right hand of the Maharaja. तो एक कील जो जैसा जो स्ट्रक्चर है वो उसके राइट हैंड में चुभ जाता है and he picks it out and throws it away. But next day he got infection in his hand. उसके पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है एंड देन 3 सर्जन्स आर कॉल्ड। इट कन्वर्ट्स इनटू अ सपोरेटिंग सोर, एक पूरा घाव बन जाता है। तो 3 सर्जन्स को बुलाया जाता है मद्रास से उसको ऑपरेट करने के लिए और सर्जन्स जो है वो ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं और ऑपरेशन होने के बाद कम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर एंड इन्फॉर्म दैट द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग इज dead. Maybe because according to them, to impute the infected part from the body is operation, and that was successful. But the Tiger King died, and the chapter ends with the sentence, "Thus the 100 tiger took its revenge upon the Tiger King." So we can say that though maybe it was a wooden tiger, but it took its revenge upon the Tiger King, and the prediction of the astrologer that the death of the tiger will come by a tiger proved
very much true. And that's why we say that the death is inevitable, whatsoever we can do, but it can never be avoided. Thank you.